All right, so starting off with the very first lecture of history. हिस्ट्री के अंदर जो आपका पहला चैप्टर आता है दैट इज रिलीजियस रिफॉर्मर्स, जिसके अंदर हमारे पास सिलेबस के अंदर तीन रिलीजियस थिंकर्स आते हैं. वन ऑफ देम इज शाह वलीउल्लाह, सेकंड वन इज सैयद अहमद शहीद बरेलवी, और थर्ड नंबर पे आते हैं हाजी शरीयतुल्लाह. दीज आर द थ्री रिलीजियस थिंकर्स दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एंड वील बी डूइंग ऑल ऑफ देम टुडे. तो स्टार्ट करते हैं with the very first religious thinker. एक overall लेते हैं, who were these basically religious reformers थे कौन. Ever since the loss of independence, the Muslims of India were not only hovering in the domain of uncertainty, but also many un-Islamic ideas were taking place in the minds of Muslims. It was at that time that some Muslim thinkers thought that unless the Muslims were brought back to the teachings of Islam or Quran, it would not be possible to save the Muslim. अगर Muslims को save करना है, it is important that you have to again reread their minds, teach them the pure Islamic teaching, the Quranic teachings. अगर Muslims को religion की तरफ लाया जाएगा, the day you bring the Muslims back to religion, the day you revive the Islam in subcontinent once again, that is the day you are going to save the Muslims as well. Saving the Muslims means saving the religion and reviving Islam in the subcontinent. This was the main aim of all the three religious reformers. अब बहुत सी national movements in the subcontinent, and all these movements started not only in a part of Indo-Pakistan but throughout the century as well. तो अगर हम एक ओवरऑल एक 7 मार्क क्वेश्चन की बात करें, that why were there attempts to revive Islam in the subcontinent during 18th and early 19th century. अब ये किसी पर्टिकुलर रिलीजियस थिंकर के बारे में बात नहीं हो रही, हम ओवरऑल देखेंगे क्यों जरूरत पड़ी इस्लाम को रिवाइव करने की. क्योंकि पहले बात हम इनको तीनों रिलीजियस थिंकर्स के यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिलीफ्स. शाह वलीउल्लाह की बिलीफ आ जाएंगे पहले पैराग्राफ में, फिर शहीद अहमद शरीद बरेलवी के बिलीफ्स आ जाएंगे, और फिर हाजी शरीयतुल्लाह की भी बिलीफ्स आ जाएंगे. तीनों के बिलीफ्स हमने 3 पैराग्राफ में लिखते हैं बिकॉज दैट इज द रीजन. इसी बुनियाद पे वो सारे क्या करना चाहते, दे वांटेड टू रिवाइव इस्लाम इन दी subcontinent in the early 18th and 19th century. Now, Shah Waliullah believed that Muslims were ignorant about Islam and the teachings of the Holy Quran. Therefore, an emphasis on the Quranic teachings would not only improve their knowledge but produce a feeling of solidarity as well. He also believed that Muslims' knowledge of Islam was difficult to gain, and so he felt that by translating the Holy Quran into Persian. अब ये जो 7 मार्क का क्वेश्चन है, 7 मार्क का क्वेश्चन बहुत जनरली है. व्हाई वर देयर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. ना शाह वलीउल्लाह का मैंने पूछा, ना सैयद अहमद शहीद बरेलवी का, ना हाजी शरीयतुल्लाह का. हमने इधर 7 मार्क के क्वेश्चन में 3 पैराग्राफ्स बनाने. ठीक है, सिंपल हम 3 पैराग्राफ्स बनाएंगे और हम तीनों के बिलीव्स डाल देंगे. दैट इज वाई देयर वर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इस्लाम, क्योंकि तीनों के कुछ ना कुछ बिलीव्स थे. सैयद अहमद शहीद बरेलवी चाहते थे to bring a holy war to restore the Muslim faith. He wanted to continue jihad. क्यों, उसकी भी रीजन है. वाई का आंसर अब हम सैयद अहमद शहीद बरेलवी के लिहाज से आंसर देते हैं. He saw that Punjab was under Sikh rule and the Punjabi Muslims found it difficult to practice their religion and they were humiliated by the Sikhs. That is why there were attempts to revive Islam in the subcontinent. अब again, why were there attempts to revive Islam in subcontinent? अब हम इसको देखेंगे हाजी शरीयतुल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो 3rd पैराग्राफ हम हाजी शरीयतुल्लाह के ऊपर बना देंगे. Why did he thought? He wanted to spread Islam through the Faraizi movement, which insisted that Muslims should perform their farais and all religious obligations, mainly in Bengal. He felt it his duty to revive the Muslim religious culture and have them to avoid Hindu practices that were evident in the society. Through these are the reasons why there were attempts to revive Islam in the subcontinent. अब हम स्टार्ट कर देते हैं. ये तो एक जनरल सवाल था. ये जो पहला सवाल आया टॉपिकल्स का, ये भी पास पेपर्स में आ चुका है. इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है. डेली के लेक्चर्स में ग्रुप पे डालता जाऊंगा. यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग, सिर्फ सुने समझें और आपने क्लास के बाद पूरा पढ़ना है. टॉपिक पक्का हो जाएगा, सीआईज तक याद रहेगा आपको. सही हो गया ना. ये तो जनरल क्वेश्चन है दैट व्हाई वर देयर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट. अब हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट रिलीजियस थिंकर शाह वलीउल्लाह, आल्सो नोन एज कुतुबुद्दीन. He was born in Delhi in 1703. He belonged to a respected family. His father's name was Shah Abdul Rahim. He founded a madrasa Rahimiya. इसी मदरसा रहीमिया से आगे जाके आप देखोगे बहुत से मेन लीडर्स जो पाकिस्तान के आए हैं बाद में भी, उनके दादा फादर्स भी सब इसी मदरसा से पढ़ चुके हैं.
He also wrote a book of Islamic legal texts under direct supervision of Emperor Aurangzeb Alamgir. Shah Waliullah received his education from Madrasa Rahimi and also taught there for 12 साल 12 सालों तक उन्होंने खुद भी वहां पढ़ाया. And in 1724 he went out to Arabia and he was greatly influenced by the teachings of Atu Tahir bin Ibrahim, as well-known scholar of his time, and he returned to Delhi in 1732, जहाँ पे he then started to view the political and social conditions of India. India मानी subcontinent. अब ये 4 मार्क क्वेश्चन है शाह वलीउल्लाह में से, that what were the political conditions and what were the social conditions of the subcontinent at that time. दोनों देखते हैं. Political instability बहुत ज़्यादा थी. There was insecurity of life. Property and honor were not secure as there were a number of destructive forces at work in Muslim society. There was disintegration of the Mughal Empire. Muslims were split among themselves. Even औरंगजेब की डेथ के बाद ही Mughal Empire began to crack. फिर नादिर शाह ने भी अटैक कर दिया था दिल्ली को, जिसकी वजह से मुगल्स को और मुस्लिम्स दोनों को, पूरे एम्पायर को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता और आपकी पावर वीकन हो गई थी. फिर दिल्ली वाज आल्सो अटैक्ड बाय जट्स. ठीक है, जट्स इन कोगाल थे. फिर वो सतनामीज के अटैक आ गए. ठीक है. फिर मराठास एंड सिख्स आल्सो अटैक दिल्ली. दिल्ली तो मेन सेंट्रल पॉइंट था. दिस इज वेयर योर मुगल ट्रेजरी वाज. सो मुस्लिम्स इन दिल्ली के हालात तो ज्यादा वर्स हो गए थे. लॉस ऑफ पावर हैड अकर्ड विच आल्सो कॉज्ड इकोनॉमिक सप्रेशन, जिसकी वजह से कुछ सोशल कंडीशंस भी सब कॉन्टिनेंट की बहुत खराब थी. क्यों? डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स थे एंड देयर वाज अ कांस्टेंट ट्रबल बिटवीन शिया और सुन्नी का जो सेक्ट था, वो सेक्टेरियन डिफरेंसेस आने लग गए थे. ये सेक्टेरियन डिफरेंसेस वर आइडेंटिफाइड बाय शाह वलीउल्लाह एट फर्स्ट. और फिर लेबर फोर्स जो थी, लेबर फोर्स को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता था उनके हार्ड वर्क के लिए. सो दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन जो कि शाह वलीउल्लाह के अंदर आ सकता है और एक्सपेक्टेड भी है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. which is what were the political and social conditions of India during Shah Waliullah's time. अगर क्वेश्चन आता है what were his beliefs, चार चार मार्क्स एंड 4 पॉइंट्स लिखें. सॉ दैट मुस्लिम्स वर नॉट अवेयर ऑफ द कुरानिक टीचिंग्स. ही सॉ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बहुत एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने बहुत सफर किया. उनकी एक आइडेंटिटी, उनकी पावर को बहुत ज्यादा एक मतलब धचका पहुंचा. ही ऑल्सो फेल्ट दैट सेक्टेरियन डिविजन ने डिसयूनिटी कॉज कर दी. शिया सुन्नी डिफरेंस ने बहुत ज्यादा मुस्लिम्स में डिसयूनिटी कॉज कर दी, तो ही वांटेड टू चेंज दैट एज वेल. प्लस मुगल एम्परर से अकेले में ये फॉरेन इन्वेजन तो हैंडल हो नहीं रहे थे एंड ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द एम्पायर एज वेल. सो फिर हमारे पास यहाँ पे सवाल आता है, व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. अब दोनों सवाल फर्क है. ऊपर क्या था, दैट व्हाई वर देयर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इस्लाम. उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके अटेम्प्ट, ओवरऑल उन्होंने बताया कि जो सारे रिलीजियस थिंकर्स थे इनको क्या सूझी, क्या वो इस्लाम को रिवाइव करते सब कॉन्टिनेंट में. यहाँ पे अब सवाल डिफरेंट आया 7 मार्क का, दैट व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह इन पर्टिकुलर विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. नंबर वन रीजन, ही वांटेड टू प्योरीफाई इस्लाम, क्योंकि इस्लाम ने अपनी प्योरिटी लूज कर दी थी. हिंदू कस्टम्स बहुत ज्यादा आ गए थे. देन एक कॉज ऑफ डाउनफॉल, जो मुगल्स की डिक्लाइन की वजह से बहुत सी इस्लामिक टीचिंग्स भी डाउनफॉल हो गई हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. एंड शाह वलीउल्लाह एक्चुअली वांटेड टू रिस्टोर द प्राइड ऑफ द मुस्लिम्स, क्योंकि मुगल्स के टाइम पे मुस्लिम्स हैड अ प्राइड. ही ऑल्सो वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, क्योंकि बहुत से सोशल इवल्स और वो सारे यू नो लेबर राइट्स जो थे, लेबर और वुमेन राइट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए थे अगर हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें. एंड लॉट ऑफ सोशल इवल्स हैड एक्चुअली करप्टेड द इस्लामिक सोसाइटी. रिच रिच बनते जा रहे थे, पुअर पुअर बनते जाते. एक इनइक्वालिटी थी, देयर वाज एन इनजस्टिस, तो उसको भी सॉल्व करना था. देन प्रोटेक्टिंग द मुस्लिम्स आइडेंटिटी, प्रोटेक्टिंग मुस्लिम्स आइडेंटिटी, क्योंकि देखो मुगल्स के रीजन में एक आइडेंटिटी थी, एक प्राइड थी. भाई इंडियंस हिंदूज भी कुछ नहीं थे उस वक्त, तो जितने मुस्लिम लीडर्स उस वक्त मुगल्स थे. ही ऑल्सो वांटेड टू, क्योंकि मुस्लिम आइडेंटिटी कहाँ से आएगी, उनके रिलीजन से. अगर रिलीजन प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यू कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स एज वेल. Then we have that what were Shah Waliullah's efforts for trying to solve sectarian division. अगर आपको सिर्फ एक 4 मार्क आता है, अब देखो प्रॉब्लम तो बहुत सारे थे. पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हैं जी, सोशल प्रॉब्लम भी हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हैं, वो सेक्टेरियन डिवीजन भी हो गया है, इस्लामिक टीचिंग्स भी नहीं है. अब इनमें से भी एग्जामिनर आपको कोई एक प्रॉब्लम पकड़ के कह सकता है कि चलो ये बताओ कि इकोनॉमिक रीजंस को शाह वली ने कैसे सॉल्व करने की कोशिश की. अच्छा चलो, ये जो सेक्टेरियन डिवीजन हो गई है शिया सुन्नी की, इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश की. तो व्हाट ही डिड, दैट ही वाज एक्चुअली ही रोट अ बुक अबाउट 4 कैलिफ्स. इन्होंने हजरत अबू बकर, उमर,
उस्मान और अली के ऊपर एक बुक लिखी, इस तरीके से, ऐसे तरीके से उन्होंने खूबसूरत वे में वो किताब लिखी कि वो दोनों शिया और सुन्नी के लिए एक्सेप्टेबल थे. इट इज अनदर थिंग वेदर और नॉट द बुक्स वर हाईली इफेक्टिव, बट अगेन इट वाज एन एफर्ट तो थी ना टू यूनाइट द मुस्लिम्स, एंड इट वाज अ वर्थ रिमेम्बरिंग. एंड व्हाट वर हिज एफर्ट्स इन मेकिंग कुरानिक टीचिंग्स अवेलेबल, ये तो हमें पता है कि सबसे मेजर उनकी जो एक एक एफर्ट कह सकते हैं, एंड नॉट जस्ट एन एफर्ट, इट वाज एक्चुअली सक्सेसफुल, वाज ट्रांसलेटिंग कुरान फ्रॉम अरेबिक टू पर्शियन. क्यों पर्शियन? क्योंकि ये पर्शियन लैंग्वेज ही ऐसी एक लैंग्वेज थी विच वाज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मुस्लिम्स एट दैट टाइम इन द इंडिया. His aim was that educated Muslims may have access to Quran without depending on the scholars as well. फिर एक किताब भी थी, हिजतुल बालिगा. अब इसके बारे में बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन सवाल आ सकता है. आई एम नॉट जोकिंग, सवाल आ सकता है. व्हाट वाज हिजतुल बालिगा? तो आप कुछ तो याद रखो ना, दैट दिस बुक एक्सप्लेन्स व्हाट. आप इसके बारे में कुछ बातें बता सकते हो. पहला मार्क पता है कहाँ से आएगा? रिटन बाय शाह वलीउल्लाह. वाह, ठीक है, मिलेगा मार्क, 1 मार्क मिलेगा. सेकंड आप लिखो, it was an attempt to wish to revive Islam in the subcontinent, mainly for the Muslims. Then it was found suitable for all races, culture, and people of the world. And how successfully उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, social issues, moral issues, economic, political problems, human beings के किन किन तरीकों से the possible course of action के ये सारे different types of issues solve हो सकते हैं. They were mentioned in हिज्जतुल बलेगा. फिर शाह वली के कुछ एफर्ट डिस्क्राइब करते हैं, हाउ ही ट्राई टू यूनाइट मुस्लिम्स ऑफ द मुगल एम्पायर. अब मुगल एम्पर जो थे वो अपनी करप्ट और इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस पे गिव अप करने के लिए नहीं थे. सोल्जर्स फॉर फॉरगेटिंग टू इनकलकेट विद देमसेल्व्स द स्पिरिट ऑफ जिहाद, उनके अंदर ये स्पिरिट भी नहीं था. आर्टिसंस, वर्कर्स एंड पेजेंट्स को उन्होंने पहली दफा बताया कि लेबर की भी कोई पावर होती है. ही एक्चुअली वर्कड फॉर जस्टिस एज वेल. इनका एक प्रिंसिपल था अदल एंड तवाजन. अदल एंड तवाजन, आई गेस ये बुक में शायद लिखा हुआ है, जिसकी बुनियाद पे ही वांटेड जस्टिस, इक्वल जस्टिस फॉर द पुअर, इक्वल जस्टिस फॉर द रिच एज वेल. एंड ही आल्सो वांटेड, ये मनसबदार सिस्टम जो है ये लॉयल नहीं है, इनको तो हटाओ. इनको तो पहले लिखा, जट्स को इसने थ्रेटन किया कि अब मुगल एम्पायर को नहीं लेना, और मनसबदारी सिस्टम इसने खत्म करने की भी तजवीज दी थी शाह वली ने, बिकॉज वो सारे करप्ट बैठे हैं ऊपर. ये मनसबदारी सिस्टम भी औरंगजेब ने ही लगाया था. बट वॉट वर हिज एफर्ट्स इन ट्राइंग टू यूनाइट मुस्लिम्स ऑफ मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर के मुस्लिम्स उनको कैसे यूनाइट किया, ये वहां पे आपका सारा आ जाएगा. हाउ ऑन व्हाट वर द अचीवमेंट्स, टोटल अचीवमेंट्स, अगर 4 मार्क क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और कुछ पुराने भी हैं. डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ शाह वली इन रिवाइविंग द इस्लाम. Number 1, translated Quran to Persian. Number 2, Madrasa Rahimiyya spread Islamic teachings, wrote an account on rightly guided caliphs, 51 books likhi, and persuaded a Muslim ruler to fight against the Marathas. Describe efforts of Shah Waliullah's son in propagating Islam in the subcontinent. अब this is not written in your Nigel Kelly में भी नहीं है और Nigel Smith में भी नहीं है. This is written in a third party book as well. मुझे था कि हाँ ये important हो सकता है. So I have added it over here कि उसके बेटों ने भी क्या क्या काम किया था. Now you can read this on your own. इसके अंदर से शाह अब्दुल कादिर is an important one जो कि आ सकता है. अब ये कुछ देखो अनएक्सपेक्टेड सवाल भी आ जाते हैं that are not included in the book as well. ठीक है, शाह अब्दुल अजीज, रफीउद्दीन, शाह अब्दुल कादिर, अब्दुल गनी, ये 4 सन्स हैं शाह वलीउल्लाह के दैट यू हैव टू डू. एक तो हाजी शरीयतुल्लाह का सन है मोहसिनुद्दीन, वो तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो तो करना ही करना. व्हाट वर शाह वलीउल्लाह's एजुकेशनल सर्विसेज. एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर अगर आपने 4 मार्क का क्वेश्चन लिखना है, 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो. ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, ठीक है, वो जो अरेबिक से पर्शियन में किया था. एक पॉइंट आप लिख सकते हो हिज्जतुल बलीगा पे, और एक पॉइंट लिख सकते हो इज्जतुल अखवा पे. एक फिफ्थ पॉइंट भी ऐड कर दो, एक जनरल सा लिख देना कि यार टोटल 51 बुक्स लिखी थी. तो ये एजुकेशनल है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब क्या होता है तो वही. अब सिर्फ सर्विसेज तो नहीं लिखी है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है. अब आप सोचो यार एजुकेशन के लिए क्या काम किया था भाई, किताब भी एजुकेशन में आती है, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान भी एजुकेशन में. तो आप इसके ऊपर 3 पैराग्राफ बना सकते हो. इज्जतुल अखवा क्या थी, इसको देख लेते हैं. इट वॉज अनदर रीनोन बुक ऑफ शाह वलीउल्लाह इन विच ही हैड रिटन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान. Shah Waliullah wrote extensively on Hadith and Fiqh, and he altogether wrote 51 books in total, जिसमें 23 अरेबिक है और 28 बुक्स उसमें से पर्शियन है, a language which is widely available to all Muslims. Then he also put an end to Shia Sunni rivalry. वो भी एजुकेशनल में आता है. क्यों? किस तरह खत्म की थी? जंग करके, मार के, सिखा के? नहीं,
तालीम देके। किस बारे में तालीम दी थी? वो भी तो एजुकेशनल सर्विसेज है कि ही एंडेड द शिया सुन्नी राइवलरी थ्रू कैलिफ्स। उन्होंने एक अकाउंट लिखा ऑन द फोर कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस तरीके से लिखा कि वो दोनों सेक्ट्स को इक्वली एक्सेप्टेबल हो। He was a role model as he worked hard to ensure that he was a role model for other Muslims, and his deep understanding of the Holy Quran, Hadith, Fiqh, and Tasawwuf made him highly knowledgeable scholar at an early age. As Arabic was not widely understood by Indian Muslims, thus the average Muslims derived his knowledge from the teachings of Muslim jurists. पॉलिटिकल सर्विसेज, अगर आपको सवाल है, अब कंफ्यूज ना हो जाए यार, पॉलिटिक्स आ गया, हो एग्जाम में पॉलिटिक्स आ गई, सीआईए में क्या करें? पॉलिटिक्स क्या है? यू आर प्रोटेक्टिंग द एम्पायर। अब प्रोटेक्टिंग द एम्पायर उसने कैसे कैसे किया? ही रोट लेटर्स टू किंग्स एंड नवाब्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मुस्लिम, जिसमें से उसने अहमद शाह दुरानी को भी कहा था टू अटैक द इंडियंस, ठीक है, जो कि थ्रेट बन रहे थे, टू अटैक मराठास, ठीक है, मराठास के ऊपर अटैक करें, बिकॉज दे वर एक्चुअली बिकमिंग अ कांस्टेंट अ कांस्टेंट थ्रेट टू द मुस्लिम एम्पायर एज वेल। इसलिए वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट कर दिया था मराठास को। अहमद शाह अब्दाली और दुरानी एक ही, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने फाइनली मराठास को हरा दिया था, कब? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। पता होना चाहिए बैटल ऑफ पानीपत क्या है। इट इज वन ऑफ द फेमस वन एज वेल, जिसमें एलिफेंट्स भी यूज हुए थे, ठीक है। एक है उर्दू में, एफएससी वगैरह में भी पढ़ाया जाता है बैटल ऑफ पानीपत को। तो ये आपके पास पॉलिटिकल सर्विसेज में भी आएंगे। इकोनॉमिक सर्विसेज में आप लेबर की बात करो, जब जस्टिस की बात आती है, ठीक है, जस्टिस किस चीज में? पैसों में, ठीक है। अब आपको वहां पे सवाल आ जाए, व्हाट वाज द शाह वली एज इकोनॉमिक सर्विसेज, कंफ्यूज नहीं होना। इट इज जस्ट द इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस तो खराब थी। क्यों खराब थी? इनजस्टिस थी, इनइक्वालिटी थी। सो ही रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू वर्क फॉर मोर आवर्स एंड स्पेंड लेस। He laid great stress on adl and tawazun, that is justice and equilibrium, and he stressed labor, peasants, and craftsmen that should be justly rewarded. He also urged the traders and businessmen to adopt a fair system of trading and making money. अदल एंड तवाज़ुन पे था कि ताकि इक्वालिटी इक्विटी आ जाए, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिले। तो अगर क्वेश्चन है तो व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह वाज सच एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम? तीन बहुत अच्छे पैराग्राफ इसके ऊपर कैसे बन सकते हैं इंपॉर्टेंस में। अब आपकी बुक के अंदर देखो, हर रिलीजियस थिंकर्स के तीन पार्ट दिए, बिलीव वर्क इंपॉर्टेंस, बिलीव वर्क इंपॉर्टेंस, बिलीव वर्क तो इंपॉर्टेंस। व्हाई वाज ही इंपॉर्टेंट? आप तीन इंपॉर्टेंसेस पकड़ो, उनको तीन पैराग्राफ में लिखो। पहले पैराग्राफ में इग्नाइटेड लव फॉर कुरान, ठीक है, बिकॉज सबसे अच्छा तरीका उनको ये लगा था कि मुस्लिम्स को अगर रिवाइव करना है, मुस्लिम्स को हिम्मत कैसे? बाय प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहाँ से? रिलीजन की वजह से होती है, आपके कल्चर की वजह से होती है, आपकी प्रैक्टिसेस की वजह से आपकी आइडेंटिटी होती है। वो प्रोटेक्ट करने चले थे, इसलिए तो उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। फिर इंकरेज द रीडिंग इन इस्लाम, इसलिए तो 51 बुक्स लिखी थी। इसलिए तो सेक्टेरियन डिफरेंस सॉल्व किया था। किस तरह सॉल्व किया था? एक किताब लिखी थी कैलिफ्स के ऊपर, फिर हिज्जतुल बलीगा लिखी थी, फिर अकाउंट ऑन फोर कैलिफ्स, इज्जतुल अख्फा लिखी थी। इंकरेज रीडिंग, एजुकेशन पे काम किया। तीसरा, ही ट्राई टू यूनाइट द मुस्लिम्स। किस तरह? सिक्स के जो वो थे उनको यूनाइट करने की लेटर्स लिखे किंग्स को, मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट किया कि यूनाइट हो जाए। कैलिफ्स वाला आप दोबारा जिक्र कर सकते हो, शिया सुन्नी को यूनाइट किया। अहमद शाह अब्दाली को बुलाया कि यार यहाँ पे इतनी डिसयूनिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि इट वाज अटर chaos when the Indians kept attacking the Mughal Empire. So that was all for Shah Waliullah. अब हम मूव करते हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी तक। Who was Sayyid Ahmad Shahid Bareilly? He was born near Lucknow in the town of Rai Bareilly. He was faithful following Shah Abdul Aziz, ठीक है। He also enrolled in the madrasa of Shah Waliullah, जो मदरसे रहीमिया था, ठीक है, जो शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह के फादर ने बनाया था। He also joined the Pathan military force led by Amir Khan, जो कि सिंध के रूलर हुआ करते थे उस जमाने में। And he also soon founded the jihad movement. क्यों? Because he had certain belief. Because life and struggle was not only confined to the spread of Islam, but also taking practical steps कि ये स्प्रेड ऑफ इस्लाम पक्का हो जाए। शाह वली उन्होंने कहा था स्प्रेड ऑफ इस्लाम। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने कहा नॉट जस्ट द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, टेकिंग दोस प्रैक्टिकल स्टेप्स, कि वो जो हमारा पर्पस है वो ना सिर्फ सिर्फ एक पर्पस रहे, बल्कि वो पर्पस अचीव भी करना है लड़के जहाद करके। एंड द मेन पर्पस बिफोर सैयद अहमद एंड हिज फॉलोअर्स वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट, एक प्रॉपर स्टेट हो,
जो कि सिर्फ इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। शाह वलीउल्लाह फोकस्ड ऑन लर्निंग, एजुकेशन, कि उनको प्रॉपर अवेयरनेस और रिलीजन के बारे में। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने उस अवेयरनेस को मजीद स्प्रेड करने के लिए कुछ मेजर्स लिए थे। एंड हिज अप्रोच टू फ्रीडम वाज बेस्ड ऑन आर्म स्ट्रगल एंड कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड नॉन मुस्लिम फोर्सेस। कि इन फिरंगियों को, वो तो सीधा सीधा था, इन फिरंगियों को हमने बाहर निकालना, इनके खिलाफ हमारी असल जंग है। So why did Sayyid Ahmad Shahid Brelvi conducted a jihad move? A very, very, very important 7 mark question को 5 दफा आ चुका है, 5 दफा ये सवाल आ चुका है कि why did jihad movement start? Why did Sayyid Ahmad Shahid Brelvi start a jihad movement? Why was jihad movement conducted? Why against Sikhs? ये क्यों करवाई थी? पहला रीजन, टू रिस्टोर द मुस्लिम प्राइड, क्योंकि ऑब्वियसली क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर थे, सिक्स के अंदर रह रहे थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, वही टैक्स कलेक्टर्स थे, मुस्लिम्स इल ट्रीट हो रहे हैं, डिग्निटी सेफ नहीं है, आइडेंटिटी खत्म बर्बाद हो चुकी है, हेंस जहाज जरूरी था। ऑल्सो टू फ्री द मुस्लिम्स ऑफ द सिख रूल, एक तरफ उनकी डिग्निटी सेफ नहीं है, और ऊपर से डिग्निटी सेफ भी कैसे होगी जब सिख रूल कर रहे होंगे, जैसे कि रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। अब इस तरह का रूलर होगा तो व्हाई वुड ही एक्चुअली अलाउ इस्लामिक प्रैक्टिसेस? इसलिए तो प्रेयर हर जगह बैंड थी। वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, आपके कस्टम्स जो थे सारे रिलीजन के, वो सारे इस्लाम के बैन थे। दैट इज व्हाई एन आर्म स्ट्रगल वाज स्टार्टेड। अब आप देखो कि ये मुझसे कल भी किसने सवाल किया, ये जो एंड में ये क्या दिया होता है, ये एंड में क्या है? हर पैराग्राफ के एंड में एक कंक्लूजन लाइन होती है। दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड जहाद, आगे यहाँ क्या है? देयर फोर ही स्टार्टेड आर्म स्ट्रगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 7 मार्क में भी और 14 मार्क में, एक ऐसी एंड करना। क्यों? अगर एग्जामिनर को मजा ना आ रहा हो ना यहाँ तक पढ़ के, एंड पे जाके उसको मजा आ जाएगा आपके इस जुमले से। क्यों मजा आएगा? क्योंकि वो कहेगा ठीक है, इसको याद था ये लिख किस बारे में रहा था, एंड यू आर एक्चुअली प्रूविंग योर पॉइंट। You have actually written your answer and you have proven it. तीसरा reason to start the jihad movement was to establish a spirit of jihad in Muslims. He wanted to restore the supremacy of Islamic ideology and to establish a system of Islamic principles. इसलिए उसने बहुत से volunteers जमा किए, उनको military training दी। अब ये खुद एक पठान वॉरियर रह चुके हैं, so that is why it was easy. अब ये सैयद अहमद की जहाद मूवमेंट थी क्या? पंजाब एनडब्ल्यूएफ में शुरू हुई थी। सबसे पहले तो टैक्स के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, फिर जो अजान बैन की थी इसके खिलाफ। और पंजाब एक लॉजिकल लोकेशन लग रही थी। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया था जहाँ पे कुछ अफगान और पठान ट्राइब भी मिल जाएंगे उनको। यहाँ वो था कि सिक्स के खिलाफ भी हमने इधर लड़ना है, और ये अफगान पठान वाले ट्राइब्स इनको मदद भी कर देंगे। तो सैयद अहमद ने बहुत से टाउन्स विजिट किए पंजाब के और कुछ और यूनाइटेड प्रोविंसेस, जहाँ पे ही ऑल्सो वाज सपोर्टेड बाय शाह इस्माइल शहीद हु वाज द ग्रैंड सन ऑफ शाह वलीउल्लाह। वो भी फ्यू हंड्रेड मैन ले आए। तो इस तरह करते करते सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान और फाइनली काबुल तक भी पहुंच गए थे। अब इतनी बड़ी, ठीक है, ऐसे करते 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 इनकी फोर्स बन गई 80,000 पीपल की इन जहाद मूवमेंट। एंड दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड टू बैटल अगेंस्ट द सिक्स। पहला तरीका ये था कि प्रिपेयर करो, जमा करो बंदे, अब सिक्स के साथ लड़ना है। तो ये पूरी टाइमलाइन दी हुई है। दिस इज अ टाइमलाइन वेयर ही ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, मीटिंग स्कीम, बलूचिस्तान, सिंध। ये बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने बस रीड करना है, याद नहीं करना। दिस इज समथिंग यू जस्ट हैव टू रीड, कि जहाद मूवमेंट की पूरी टाइमलाइन यहाँ दी है कि किस किस तरह क्या हुआ था और एंड पे खत्म कैसे हुई थी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइमलाइन। लेकिन रेयर है, ऐसा सवाल नहीं आएगा कि इतनी डिटेल आप बताओ कि पूरी सीक्वेंस से जहाद मूवमेंट। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? व्हाई डिड द जहाद मूवमेंट फेल? इतनी अच्छी मूवमेंट थी, क्यों? रंजीत सिंह ने डिस्ट्रप्शन क्रिएट की थी। वो जो मुजाहिदीन का कैंप लगा हुआ था, टोटल 80,000 मुजाहिदीन थे आपकी जहाद मूवमेंट में। रंजीत सिंह ने थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन क्रिएट की थी। A conspiracy was also hatched against the movement and an attempt was made on the life of Sayyid Ahmad by poisoning him as well. इसका एक जनरल था, सरदार यार मोहम्मद। ये ब्राइब हो गया था, रंजीत सिंह ने इसको ब्राइब कर दिया, यानी बिट्रेड सैयद अहमद शहीद बरेलवी अगेंस्ट द मुजाहिदीन। यही अपना बंदा, वही जैसे मीर जाफर ने किया था। अब हुआ क्या कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवा दी इनके दरमियान, क्योंकि आपके मुजाहिदीन फोर्स का एक मसला है। बहुत से लोगों ने सैयद अहमद शहीद को मना किया था कि इतने कल्चर्स ना लाओ। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने कहा नहीं, हम अफगान भी लाएंगे, हम पठान भी लाएंगे। वही इनको गले पड़ गई। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया था इसके, अपने जनरल्स, एडवाइजरी बोर्ड ने, एडवाइजर्स बहुत सारे थे। लेकिन अब वही पठान और मुजाहिदीन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन थी, फिर लैक ऑफ प्रॉपर फंड्स,
और कुछ मुजाहिदीन फाइटर जिनको रास्ते में से बस जमा करते गए थे, दे डिडंट इवन हैव दैट प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग. बट ओवरऑल अगर हम कहें दैट व्हाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी हैव सच एन मेजर इन्फ्लुएंस, फाइट करना सिखाया, प्रैक्टिकलिटी थी. He took up arms, not just education as a weapon. Shah Waliullah used education as a weapon. इन्होंने असल में weapons use किए थे during battles to not just spread Islam but to fight for Islam. And he defeated Sikhs in many battles जिसके अंदर Muslims को encourage किया था. Started the Mujahideen movement and also Muslims और पंजाब की बहुत support मिली थी. This was also the driving force for War of Independence. यहीं से हिम्मत आई थी for the War of Independence as well. एक और 4 मार्क क्वेश्चन है, आ सकता है, पॉसिबल है, आया भी है एक दफा. हु वाज तीतो मीर? ये बेसिकली एक स्टूडेंट ही था, फॉलोअर था सैयद अहमद शहीद बरेलवी का, एंड ही वाज आल्सो एंगर्ड बाय द सफरिंग्स ऑफ मुस्लिम इन वेस्ट बंगाल. तो इसको भी वही मसले थे जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ही वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स. इसने क्या किया, ही गैदर्ड पुअर फार्मर्स और जितने लेबर्स थे, और उसने भी एक आर्म रेजिस्टेंस शुरू कर दिया अगेंस्ट हु, लोकल हिंदू लैंड ओनर जो अपनी ही मुलाजमों पे जुल्म कर रहे थे. ही ऑल्सो मेड अ फोर्ट यूजिंग बैम्बू स्टिक्स, गन्ने के दरख्तों से उसने बैम्बू स्टिक से एक फोर्ट बनाया था. एंड ही डिफीटेड मैनी लोकल हिंदू लैंड ओनर्स. इवेंचुअली ब्रिटिश ने एक दिन आर्मी भेजी एंड ही वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी, बट अगेन ही वॉज अ फियर्स फाइटर फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लाम. Now we'll start off with the last and the third religious thinker, which is Haji Shariatullah, most importantly known by his Farisi movement. Who was Haji Shariatullah? Born in district of Faridpur. After receiving his early education in his village, he got an opportunity to perform Hajj at the age of 18, and he studied religion and Arabic. Bengal वापस आए 1806 में, and he was greatly impressed by the doctrines of Sheikh Muhammad Abdul Wahab, जिसमें वहाबी मूवमेंट स्टार्ट की थी अरेबिया. इन्होंने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट को डिक्लेयर किया दारुल हर्ब, अब मिजरेबल प्लेस फॉर मुस्लिम्स, जहाँ इस्लामिक प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो हो सकती, जहाँ पे आप फराइज नहीं अदा कर सकते, जहाँ पे आपने ना वर्शिप, ना नमाज, ना अजान, ना जक़ात, फास्टिंग, कुछ आप अगर अपने कस्टम नहीं फॉलो कर सकते. प्लस ही ऑल्सो वांटेड टू एम्फसाइज ऑन द प्रेयर फॉर पास्ट सिंस. लोगों को तौबा का आइडिया दिया कि तौबा है, अगर सिंस किए माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो. एंड ही वॉज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ जहाद मूवमेंट एज वेल. तो ही स्टार्टेड अ सिमिलर मूवमेंट नोन एज फरेजी मूवमेंट, जो कि बाद में इसके सन मोहसिनुद्दीन ने भी कैरी की थी. वो किस तरह की थी वो भी अभी हम पढ़ेंगे. दिस फरेजी मूवमेंट वाज एम्फसाइज्ड ऑन प्यूरिफाइंग इस्लाम फ्रॉम नॉन इस्लामिक टीचिंग्स, फोकसिंग ऑन द फराइज ऑफ इस्लाम, और ऐसा एरिया बनाना जहां पे फराइज परफॉर्म भी हो सके, रिस्टोरिंग द पावर ऑफ मुस्लिम्स एंड रिवाइविंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम अमंग द मुस्लिम्स एज वेल, praying for the past sins and leading a righteous life according to Islamic teachings. What were the aims of Faraizi movement? वही है, ठीक है, जो मैंने बताया. नंबर 1, परफॉर्मिंग फराइज. नंबर 2, adopting तौबा. नंबर 3, डिक्लेयरिंग इंडिया एज दारुल हर्ब. इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लें, जो मैंने अभी वैसे बता दी. बी गॉड फेयरिंग, और ये जो था ना, सिंस के लिए माफी मांगे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज वेल. तो यहाँ पे 7 मार्क क्वेश्चन आता है, या 4 मार्क लिखा हुआ है, एक्चुअली 7 एक्चुअली, सॉरी. Why did Haji Shariatullah found the Farezi movement? Number 1, again, to emphasize on purifying Islam from non-Islamic teachings and perform and actually focusing on the Faraiz of Islam. क्योंकि again मैंने वही सारे reasons बताए हैं कि Muslims were unaware of the religion. He wanted to purify Islam and bring Muslims back on the path of conducting Faraiz of Islam. Number 2, to have the Muslims pray for past sins, तौबा का कॉन्सेप्ट देना था, and so they can live a righteous life according to the Islamic teachings, ताकि वो दारुल हर्ब को एक प्योर एरिया और लैंड में कन्वर्ट कर सके. एंड नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था, टू रिस्टोर द पावर ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड हिंदू जमींदार. दिस इज अ सिमिलर एम जो आपके जिहाद मूवमेंट का भी था, और शाह वलीउल्लाह भी यही चाहते थे कि इक्वालिटी हो, क्योंकि बहुत से ब्रिटिश ट्रेडर्स और हिंदू जमींदार जो थे, ये रफ ट्रीटमेंट बहुत देते थे मुस्लिम्स को. तो व्हाट हैपेंड वाज कि इनकी सैलरीज भी बहुत कम थी, पूरा पूरा दिन ऑफिसेज और उनके बाग में और जमीनों पे काम करते, दैट द मुस्लिम्स वर अनएबल टू फॉलो सलात एंड सौम एज वेल. ना फास्टिंग कर सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं. दैट इज व्हाई हाजी शरीयतुल्लाह डिसाइडेड टू फॉर्म दिस मूवमेंट टू हेल्प द मुस्लिम्स
रियलाइज दैट इफ दे आर यूनाइटेड अंडर वन बैनर, ये एग्रेशन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। अब हिंदू जमींदार से क्या इनको आई थी? मई जून 2017 में, मई जून 2017 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए आया था, हु वर जमींदार्स, हु वर द जमींदार्स। नाउ आई नो मैनी पीपल जो कि ये अनएबल थे ये सॉल्व करने की, मेरे से एक दो बैच पीछे के थे, व्हेन आई हैड ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, बहुत से लोगों से जमींदार वाला सॉल्व ही नहीं हुआ था। दिस इज द आंसर। आपको नहीं पता, आप ये बताओ वो थे कौन और उनकी तरफ से क्या ऑपोजिशन आई थी? क्योंकि जमींदार का कोई टॉपिक है आपकी बुक में नहीं है, हु वर द जमींदार्स बंदा बताए क्या? ठीक है, तो दिस इज द आंसर। उन्होंने क्या किया ये बताओ, इनके अगेंस्ट क्या किया ये बताओ। ये अनलॉयल थे, मुस्लिम पेजेंट्स पे जुल्म, दारुल हर्ब। ठीक है, इन्होंने क्या, देवर, इनकी प्रैक्टिसेस बताएं, एंड आल्सो देवर डिसयूनाइटिंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उन पे जुल्म, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई देवर अपोज्ड बाय ऑल ऑफ द रिलीजियस थिंकर्स एज वेल। अब जो मोहसिनुद्दीन था, व्हाट डिड ही डू फॉर द फरेजी मूवमेंट? इसने सबसे पहले तो बंगाल को सर्कल्स में डिवाइड कर दिया, ताकि एक एक बंगाल का हिस्सा एक एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो, विच वाज एक्चुअली अ बिग फेलियर। ठीक है, इसने क्योंकि लैंड टैक्सेस अपोज करने में ना बहुत आगे चला गया, अच्छा मूव था, बहुत आगे चला गया कि ब्रिटिश से पंगा ले बैठा और ब्रिटिश ने इसको जेल में डाल दिया। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई फरेजी मूवमेंट फेल्ड was, एक तो आपने सिर्फ ईस्ट बंगाल पे फोकस किया, एंड यू डिड नॉट हैव दैट मच फॉलोअर्स। मोर ओवर हाजी शरीयतुल्लाह बैनिश हो गए थे, उनको एम्पायर से बैनिश कर दिया था, विच एक्चुअली जब आपका लीडर चला जाए, ठीक है, आपकी मूवमेंट वीक हो जाती है। प्लस मोहसिनुद्दीन को जब जेल में डाल दिया तो पीछे और कौन चलाता? जब आपके पास लीडरशिप नहीं होती है, ब्रिटिश पावर में आ गए थे, जब लीडरशिप नहीं है तो अगेन सारे फॉलोअर्स डिसयूनाइट हो गए थे। बट व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजी मूवमेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Work of Haji Shariatullah was important to the Farazi movement because it gave encouragement to Muslims at a time when they were demoralized by oppression and suffered from Hindu and British. It also brought about a spiritual revival which led to revival in Islamic region, and Hindu influences were moved from Islamic practices. यही एक movement थी which actually sowed the seeds for the Pakistan movement in 1947. दिस वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे मुस्लिम्स को पता लगा स्ट्रगल कैसे करते हैं। दैट इज हाउ मुस्लिम्स 1947 में भी, ये एक ड्राइविंग पॉइंट था दैट देयर फोर फादर्स वर एक्चुअली एबल टू डू दैट। अब एक 14 मार्क लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। क्वेश्चन है, डिड शाह वलीउल्लाह कंट्रीब्यूट मोर टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम देन एनीवन एल्स इन द सब कॉन्टिनेंट? अब ये 14 मार्क क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने सबने। वो कहते हैं क्या शाह वलीउल्लाह ने ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम देन एनीवन एल्स? अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? 3 पैराग्राफ्स शुड बी डेडिकेटेड टू हु? शाह वलीउल्लाह। ठीक है, 2 पैराग्राफ्स आप लिखोगे सैयद अहमद शीर बिलवी। देखो यहां से तो आपके मेन मार्क्स तो यहाँ आ जाएंगे, 5 से 6 नंबर आपको जो 14 मार्क्स से मिलेंगे वो उस पे मिलेंगे अगर आप शाह वलीउल्लाह के 3 पैराग्राफ बहुत अच्छे बताते हो। ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू पर्शियन, 51 बुक्स, शिया सुन्नी, नादिर शाह, शाह अब्द अली को लेटर्स लिखे और लेबर फोर्स की मदद की। बहुत अच्छे पैराग्राफ बन सकते हैं। फिर आप लिखो, हाउ एवर other religious personalities and thinkers also contributed to Islam. For example, सैयद अहमद शहीद बरेलवी पे 2 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन 1 पैराग्राफ आप हाजी शरीयतुल्लाह का भी डालो। हाँ जी फातिमा। सर ये जो हमारे स्कूल में अगर हम 14 मार्क के लिए 7 पैराग्राफ ना लिखें तो हमें आई गेस कोई 3 मार्क्स कम मिलेंगे इस क्वेश्चन तो के। ये 7 पैराग्राफ्स ही बन रहे हैं, कल से आप 7 मार्क देखो, 7 पैराग्राफ ही बन रहे हैं, काउंट करो। सर एक पैराग्राफ 2 फॉर सैयद अहमद, 3 फॉर शाह वलीउल्लाह और 1 फॉर हाजी शरीफ। तो आखिर ये भी तो है। अच्छा कंक्लूजन ठीक है। हो गए, 7 हो जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखो हम रोज जब नया टॉपिक पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी भी हो, हिस्ट्री हो, इस्लामिया, तो देखो हर जगह 7 7 7 वाला नहीं हो सकता। इट्स ऑल, इट्स नॉट यू जस्ट, देखो रट्टा नहीं करना, कोई प्रॉपर लेवल मार्किंग पे अपने आप को बाउंड या स्ट्रेस नहीं करना। ठीक है, हाँ बहुत जी। से स्टूडेंट स्ट्रेस लेते कि यार 7 लिखने, हर चैप्टर का फर्क है।
थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब इसमें 7 आप कैसे बनाओगे, नहीं हो सकते। तो हमने कर लिए किस तरह, आप 3 पैराग्राफ लिखो शाह वली अल्लाह, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर हाजी शरीयतुल्लाह होता मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं इसके ऊपर 3 लिखता, 2 किसी पे और 1 किसी पे, ठीक है, और फिर कंक्लूजन आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास पूरा आंसर लिखा हुआ है over here, and this is the conclusion that although every religious thinker was quite successful in spreading the message amongst the people, Shah Waliullah through writings and Sayyid Ahmad Sheri Brevi through his jihad movement and Haji Shriutullah through his Farazi movement, yet yet in my opinion, सबको बताया, हर रिलीजियस थिंकर क्वाइट सक्सेसफुल था। शाह वलीउल्लाह थ्रू हिज राइटिंग्स, सैयद अहमद शहीद बेलवी थ्रू हिज जहाद, हाजी शरीयतुल्लाह थ्रू हिज फरेजी मूवमेंट, लेकिन येट इन माय ओपिनियन, फिर भी शाह वलीउल्लाह वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एट हिज वर्क, वाज एवरलास्टिंग एंड सोड अ सीड। अब मैंने क्या कहा, कि मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि एंडिंग कंक्लूजन इज अ मस्ट, यस। 7 मार्क में एंडिंग कंक्लूजन इज नॉट अ मस्ट। 7 मार्क क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं देते, 14 मार्क में देते हैं जैनब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शाह वलीउल्लाह वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। क्यों? जहाद मूवमेंट शुरू हुई, खत्म हो गई, फरेजी मूवमेंट शुरू हुई, खत्म हो गई, लेकिन शाह वलीउल्लाह ने माइंड्स में नॉलेज डाला था। माइंड कोई नहीं लेके जा सकता, किताबें लिखी थी, किताबें कोई खत्म नहीं कर सकता। कुरान पाक ट्रांसलेट किया पर्शियन में, इस्लामिक टीचिंग्स एजुकेशन थी, एजुकेशन नहीं मिटा सकते आप। मूवमेंट्स खत्म हो सकती, एजुकेशन कैन नॉट बी रिमूव्ड। गॉट इट? समझ आ गया सबको? क्लियर है आज का लेक्चर? जी सर।